السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ بی جے پی اور ٹی آر ایس کے درمیان سیاسی و معاشی جنگ، قرض لینے پر پابندی، ٹی آر ایس حکومت کو مشکلات کا سامنا۔ انتخابات کی جلدی ہے تو بی جے پی پارلیمنٹ تحلیل کرے، ریاست میں انتخابات وقت پر ہوں گے، جھوٹوں کا بادشاہ امت شاہ، کے ٹی آر کی پریس کانفرنس۔ امت شاہ کا بیان، بعض سیاسی جماعتوں کے منہ پر تماچا، اقلیتوں کے تحفظات کو برخاست کرنے کے اعلان پر پابندی عہد، بی سنجے کا رد عمل۔ اور سنت نگر اسمبلی حلقے میں 310 ڈبل بیڈ روم مکانات عوام میں تقسیم، مقامی عوام کو پہلی ترجیح، درمیانی افراد کی جھانسے میں نہ آئیں، وزیر سرینواس یادو کا بیان۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماوین پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماوین ہائٹس ورنداون کالونی، ماوین پریسٹیج آصف نگر، ماوین ایلائٹ، ماوین کراؤن، ماوین ایلیگنس، ابرار ماوین، ماوین ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بی جے پی اور ٹی آر ایس کے درمیان سیاسی و معاشی جنگ عروج پر پہنچ چکی ہے۔ مرکزی حکومت نے تلنگانہ حکومت کو قرض لینے پر پابندی لگا دی ہے اور فنڈز کی مؤثر انداز میں اجرائی نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے تلنگانہ حکومت کا بجٹ بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے۔ مرکزی حکومت کے خلاف وزیر اعلیٰ قرارداد پیش کرنے کے لیے ایک روزہ اسمبلی اجلاس طلب کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ریاست کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے درمیان تعلقات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ بی جے پی کے خلاف قومی سطح پر محاذ کھولنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ ریاستی سطح پر بی جے پی اور ٹی آر ایس کے درمیان سیاسی جنگ چل رہی ہے، لیکن مرکزی حکومت بی جے پی نے سیاسی جنگ کے ساتھ ساتھ معاشی جنگ شروع کرتے ہوئے کے سی آر کا ہر سے حیات تنگ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ مرکزی حکومت کے وزارت فائنانس نے تلنگانہ حکومت کو مزید قرض لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ محکمہ وزارت فائنانس نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت نے مختلف فائنانس کارپوریشن سے قرض لیا ہے، جس کی گارنٹی ریاستی حکومت نے دی ہے، لہٰذا اس ادائیگی تک مزید قرض جاری نہ کرنے کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے جاریہ مالیاتی سال میں بجٹ میں 59,000 کروڑ قرض کا نشانہ رکھا ہے۔ 2 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، مرکزی حکومت نے قرض لینے کے لیے منظوری نہیں دی۔ مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ حکومت نے جو مختلف کارپوریشن کے تحت قرض لیے ہیں وہ FRBM کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ دوسری طرف سال 2021-22 کے تلنگانہ حکومت کے بجٹ میں مرکزی حکومت سے گرانٹ اور دیگر امداد کی شکل میں 38,000 کروڑ روپے کا نشانہ رکھا گیا تھا، لیکن مرکزی حکومت نے صرف 8,619 کروڑ روپے ہی جاری کیے، جس کی وجہ سے تلنگانہ حکومت کا بجٹ بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی حکومت سے سرکاری طور پر نمائندگی کی جا رہی ہے، تاہم مرکزی حکومت کی جانب سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے مثبت جواب نہ ملنے پر ریاستی حکومت کو مزید مشکلات کا سامنا ہے اور دیگر وسائل تلاش انہیں کرنے ہوں گے۔ ریاستی حکومت کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو دیگر فلاحی پروگراموں کے لیے فنڈز جاری کرنا مشکل ہو جائے گا۔
18 मई से पल्ले और पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज होने वाला है। जून में रेतु बंधु के लिए बजट जारी करना है। ऐसे कई प्रोग्राम हैं जिनके लिए फंड्स की जरूरत है। मरकज की बीजेपी हुकूमत की इस मुआशी जंग के खिलाफ केसीआर कौन सी हिकमत अमली तैयार करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बावसूख ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव फंड्स की इजराई में मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ करारदाद पेश करने का मंसूबा रखते हैं। इसके लिए एक दिन का खुसूसी इजलास तलब करने का वो फैसला लेने वाले हैं। सियासी तौर पर भी केसीआर असेंबली तहलील करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं, अगरचे कि वो ऐसा करेंगे तो मरकजी हुकूमत रियासत में सदर राज नाफिज करते हुए केसीआर को मज़ीद कमज़ोर कर सकती है। केसीआर सियासी और मुआशी जंग लड़ते हुए बीजेपी को जवाब देते हैं या फिर अपने हथियार डालते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, 4TV न्यूज़। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा है कि बीजेपी को इंतखाबात की इतनी जल्दी है तो पार्लियामेंट तहलील करें। केसीआर सही वक्त पर इंतखाबात के लिए जाएंगे। टीआरएस भवन में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि सुनहरा तेलंगाना का मॉडल मुल्क के सामने रखेंगे। इन्होंने कहा कि सच बोलने के लिए कहा तो निज़ाम के बारे में बोलकर चले गए। बीजेपी ने इन सालों में तेलंगाना के लिए क्या किया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। केटीआर ने कहा है कि सियासी सयाह तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं, मुकामी कायदीन की स्क्रिप्ट पढ़कर जा रहे हैं, बुनियादी सतह की हकीकत से नावाकिफ हैं। इन्होंने कहा है कि बीजेपी मजलिस के कंधों पर रखकर गोली चलाना बंद करे। इन्होंने कहा है कि कौमी सतह पर उर्दू ज़बान में इम्तिहान हो सकते हैं तो तेलंगाना हुकूमत उर्दू में इम्तिहानात क्यों मुनक्किद नहीं कर सकती। अमित शाह ने अपने खिताब में एक भी काम की बात नहीं की, सिर्फ झूठ बोलकर अवाम को गुमराह किया है। केटीआर ने कहा है कि बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं। 2500 करोड़ रुपए में कर्नाटक के वज़ीर आला की कुर्सी को फरोख्त करने वाली पार्टी है। बीजेपी हुकूमत की नाअहली की वजह से पानी की तकसीम का मसला अब तक हल नहीं हुआ। केटीआर ने कहा है कि बी संजय एक भिखारी की तरह वोट मांग रहे थे। इन्होंने कहा है कि इख्तिदार है, कोई तंबाकू या लौंग नहीं जो दे दें। इन्होंने कहा है कि इंतखाबात की टीआरएस को कोई जल्दी नहीं, इंतखाबात जब भी होंगे టీఆర్ఎస్ की कामयाबी यकीनी है। మైనారిటీల విషయంలో కూడా ఒక మాట చెప్పాలా? ఇగోండి చూడండి బ్రదర్, మీరు ఎంత డొల్ల మాటలు, ఎంత చిల్లరగాలు వీళ్ళనేందుకు ఇగో ఇది కథ. ఇగో ఇది అదర్లా కాదు. ఇగో కర్ణాటకలో, కేరళలో, బీహార్లో, కర్ణాటక వాళ్ళ రాష్ట్రమే కదా, బీహార్ వాళ్ళ రాష్ట్రమేనా? మరి అక్కడ ఆల్రెడీ ముస్లిం కోటా ఉంది. నా కథ కాదు, చూసుకోండి, నేను మీకు ఇస్తా, నేను చెప్పిన తప్పైతే చూసుకోండి. ఇది ఇట్లుంది. ఇక ఇంకోటి గమ్మత్తు, మోడీ సొంత రాష్ట్రం ఏది? గుజరాతే కదా. ఇగో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి ఇగో ఆయన అనౌన్స్ చేసిండు, గుజరాత్ టు ఇంప్లిమెంట్ 10% రిజర్వేషన్ ఫర్ అప్పర్ కాస్ట్ అండ్ మైనారిటీ పూర్. ఆయన రిజర్వేషన్ అని చెప్తే ఆడ లోకల్ కాంగ్రెస్ వాడు, ఆయన పేరు అమిత్ చావ్డా అనట, ఆయన వద్దన్నాడట. ఇది గుజరాత్లు ఇవ్వచ్చు, కర్ణాటకలు ఇవ్వచ్చు, బీహార్లు ఇవ్వచ్చు, కేరళలు ఇవ్వచ్చు, తెలంగాణలో ఇవ్వద్దు. ఏం పాపం చేసిన తెలంగాణ ముస్లింలు? అంటే మీ కర్ణాటక ముస్లింలు ఏమో మంచోళ్ళు, మా వాళ్ళు చెడ్డోళ్ళ? మీ గుజరాత్ ముస్లింలు చాలా ఆనిముత్యాలు, మా వాళ్ళు కాదా? మరి ఆడిచ్చినప్పుడు ఈడెందుకు ఇవ్వద్దు, ఈడిస్తే ఆడెందుకు ఇవ్వద్దు? దేశంలో సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు బట్టి రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మేము చెప్పడం కాదు కదా, జస్టిస్ రాజేందర్ కుమార్ సచార్ కమిటీ, ఎవడో చిల్లరమల్లర వ్యక్తి కాదు, ఒక సుప్రీంకోర్టు జడ్జి చెప్పిండు. సచార్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఏమని ఇచ్చింది? స్పష్టంగా చెప్పింది అందులో, దేశంలో దళితులతో పాటు ముస్లింలు కడు పేదరికంలో ఉన్నారని. జస్టిస్ రాజేందర్ కుమార్ సచార్, మళ్ళీ ఆయన ముస్లిం అనుకుంటారేమో అందుకే చెప్తున్నా, ఆయన హిందువే. జస్టిస్ రాజేందర్ కుమార్ సచార్ ఆయన చెప్పిండు. మరి సామాజిక ఆర్థిక వెనుకబాటుతనానికి గురైన వర్గాలకు రిజర్వేషన్ కల్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే కదా ఈబీసీ కోటా తెచ్చింది నీ ప్రభుత్వం. ఈబీసీ కోటా ఎందుకు తెచ్చినావు? అగ్రవర్ణాల్లో కూడా వెనుకబడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారనే తెచ్చారు కదా. మరి ఇంట్లో తప్పేముంటుంది? అయితే నువ్వు కర్ణాటకలో చేస్తావు, బీహార్లో చేస్తావు, ఇంకొకడ చేస్తావు, ఇక్కడ చేయొద్దా? తప్ప సిగ్గు లజ్జ ఏమైనా ఉందా? మొన్న ఉర్దూ మీద గిట్లే మాట్లాడినారు. తెలంగాణ ఇక్కడ గ్రూప్ 1 పరీక్షలో ఉర్దూ పెడుతుందంటే దాని మీద చిల్లర మల్లర మాటలు. మరి యూపీఎస్సీలో పెడుతున్నావు కదా, ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టొద్దంటే నోరు మూసుకున్నారు తెల్లారి నుంచి. కిసి ख्वाम को अगर ख़त्म करना है तो उसका जुबान पहले खींचो అంటే వాళ్ళ ఫసలు మొదలు బద్నాం చేయి, అలా ఖతం చేయి, వాళ్ళ భాషను కూడా మొత్తం బద్నాం చేయి అనేది పాయింట్. ఆ కథ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि झूठ के बादशाह अमित शाह हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अमित शाह ने
अमित शाह ने ये गुजरात नहीं है, तहरीक से हासिल किया गया तेलंगाना है। गुजरात का झूठा प्रोपेगेंडा तेलंगाना में नहीं चलेगा। हरीश राव ने कहा है कि अमित शाह ने झूठ की हद पार कर दी। आर्टिकल 317 बिल की टीआरएस पार्टी ने तायद की थी, जिसका सबूत पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। इसके बावजूद वो झूठ बोल रहे हैं। मिशन भगीरथा को मरकजी हुकूमत ने 1 रुपया नहीं दिया, लेकिन 2500 करोड़ रुपए का झूठा बयान दिया है। आयुष्मान भारत पर अदम अमल आवरी का इल्जाम लगाया गया है, जबकि तेलंगाना में 2021 से इस पर अमल आवरी हो रही है। मरकजी हुकूमत ने इस स्कीम के तहत 150 करोड़ रुपए जारी किए हैं। अमित शाह का बयान सही है या फिर पार्लियामेंट में विज़रा की जानिब से दिए गए बयानात सही हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इससे पहले जेपी नड्डा और अब अमित शाह तेलंगाना वोट की खातिर झूठ बोल रहे हैं। हरीश राव ने कहा है कि पानी, मुलाजिमतें और फंड्स देने का वादा एक बहुत बड़ा मजाक है। इन तीनों मामलात में मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की है। इन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत पहले इस बात का ऐलान करे कि वो 15,60,000 सरकारी जायदादों पर कब तक़र्रुरात करेगी। వారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు వింటే ఆయన నిజంగానే అమిత్ షా కాదు అబద్ధాల షా అని చెప్పి మరొకసారి రుజువు చేసుకున్నారు. మొన్న నడ్డా గారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు వచ్చి ఆయన నడ్డా అబద్ధాల అడ్డా అని చెప్పి ఆయన ప్రూవ్ చేసుకుంటే అమిత్ షా గారు అబద్ధాలకు బాద్షాగా ఈయన కూడా ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. అంటే జనరల్గానే బీజేపీ అంటేనే భారతీయ జూటా పార్టీ. అంటే స్వయంగా అమిత్ షా గారే గతంలో అబద్ధాలను ప్రచారం చేయండి, సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ వాట్సాప్ యూనివర్సిటీలో అబద్ధాలను ప్రచారం చేయండి అని పబ్లిక్గా చెప్పే పార్టీ బీజేపీ పార్టీ. అంటే ఇలా అమిత్ షా గారు మాట్లాడిన దాంట్లో ఒక్కటి కూడా నిజం లేదు. అమిత్ షా కాస్త అసత్యాల షాగా మారిపోయింది ఆయన. అమిత్ షా గారు ఎంత అలవోకగా అబద్ధాలు ఆడిండంటే బహుశా ఈ దేశంలో ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఇంత అలవోకగా అబద్ధాలు ఆడే నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది ఒకే ఒక్కడు అమిత్ షా గారు. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बर्खास्तगी के अमित शाह के ऐलान से बीजेपी का अक़लियत दुश्मन चेहरा बेनकाब हो चुका है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अक़लियतों को भी दीगर तबक़ात की तरह मसावी मौका मिलना चाहिए। इन्होंने अमित शाह के बयान की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि दीगर तबक़ात की तरह मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा हैं और उन्हें भी दीगर तबक़ात की तरह पसमानदगी की बुनियाद पर मसावी मौक़े हासिल होने चाहिए। इन्होंने कहा है कि एक तरफ वज़ीर आज़म सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी हुकूमत इसके कारिंदे मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी को दस्तूर के मुताबिक फ़राहम करदा मसावी मौक़ों से महरूम करना चाहती हैं। महमूद अली ने कहा है कि अमित शाह तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ़ ही नहीं, वो सिर्फ सियासी रक़ाबत पर मबनी स्क्रिप्ट पढ़कर चले गए। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय ने कहा है कि अमित शाह का खिताब बाद सियासी जमातों के मुंह पर तमाचा है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि मुफ्त तालीम और सेहत फराहम करने के वादे पर बीजेपी पाबंद अहद है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी के इख्तिदार में आने पर मखलूआ सरकारी जायदादों पर तक़र्रुरात करेगी। हर साल जॉब कैलेंडर जारी होगा। पेट्रोल डीजल वैट की कीमतों में कमी की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव फार्म हाउस में काश्त करते हुए दौलतमंद हो गए हैं, लेकिन अवाम को भिखारी बना दिया। इन्होंने कहा है कि अमित शाह के कहने के मुताबिक अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि केसीआर और केटीआर अब ड्रामाबाजी बंद करें। इन्होंने कहा है कि अवाम के ख्वाहिश के मुताबिक प्रजा संग्राम यात्रा का तीसरा मरहला शुरू किया जाएगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि बीजेपी के जलसे में किसी एक ने जय तेलंगाना नहीं कहा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बीजेपी को तेलंगाना से मोहब्बत नहीं है। फिर एक बार ये साबित हो चुका है। तक़सीम बिल के वादे को बीजेपी ने अब तक पूरा नहीं किया। 15 लाख रुपए हर खानदान के अकाउंट में डालने का वादा किया गया था और हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा किया गया था। वो तो पूरा नहीं किया, बल्कि वहीं
रोजगार जमानत स्कीम के बजट में 25,000 करोड़ रुपए की कटौती की दी गई। यूरिया की सब्सिडी में कटौती की गई। इन्होंने कहा कि टैक्स की शक्ल में 3 लाख करोड़ रुपए लिए गए। तेलंगाना को सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए ही दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि केसीआर मुल्क के लिए एक मिसाली वजीर आला हैं, वो तेलंगाना के गांधी हैं। మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యేటప్పుడు అందరూ కూడా చూశారు. ఇక ప్రధానమంత్రి అనే ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో గ్యాస్ ధర సిలిండర్ ధర 400 ఉన్నాయి. ఇది కాంగ్రెస్ పాపం అన్నాం. నేను తగ్గిస్తా అని చెప్పావు. ఇవాళ ఎంత చేశావు? 1000 రూపాయలు పైన చేశావు. పెట్రోల్ ధర పెంచావు, డీజిల్ ధర పెంచాం, 2 కోట్ల ఉద్యోగాలని ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టాం, 15 లక్షలు ఎవరి ఖాతాలలో వాళ్ళ ఖాతాలు ఇస్తా, బ్లాక్ మనీ ఎంత తీస్తున్నారు అని చెప్పాం. ఎన్ని మోసం చేసినాయని మర్చిపోయావా? నేను అమిత్ షా గారిని అడుగుతున్నా, కిషన్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నా, బండి సంజయ్ గారిని అడుగుతున్నా, పోనీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్రంలో 8 ఏళ్ల నుంచి మీరు చేసింది ఒక్కటైనా చూపెట్టండి. కేసీఆర్ గారు ఇండియాలోనే ఆదర్శ ముఖ్యమంత్రి. टीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली बी सुमन ने कहा है कि खानदानी सियासत के बारे में बात करने का अमित शाह को हक नहीं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अमित शाह के फर्जंद बीसीसीआई ओहदे पर किस तरह फायज हो गए, क्या इनको क्रिकेट खेलना आता है। इन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी में खानदानी सियासत पर पाबंदी लगाते हुए करारदाद मंजूर करें, इसके बाद दूसरों पर उंगली उठाएं। कर्ज के बारे में बात करने के लिए अमित शाह को शर्म आनी चाहिए। तेलंगाना का कर्ज जीएसडीपी का 27% है, जबकि मुल्क का कर्ज 60% है। मरकजी हुकूमत कर्ज लेकर अदानी और अंबानी को दे रही है। तेलंगाना हुकूमत प्रोजेक्ट्स तामीर कर रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के जलसे में सिर्फ टीआरएस को निशाना बनाया गया है। दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। इन्होंने कहा कि तेलंगाना को भी गुजरात का गुलाम बनाने की कोशिश की गई। केसीआर के कौमी सियासत के एजेंडे से बीजेपी खौफजदा हो गई है। के डर से चंद्रशेखर राव धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? अरे हम मजलिस से भी नहीं डरते और आपसे भी नहीं डरते चंद्रशेखर राव। Chairman, this is a historic bill brought to a historic decision taken by a Prime Minister and Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji. I raised to support this bill on behalf of our party, Telangana Rashtra Samiti. ఇంత క్లియర్గా మా పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకులు నామా నాగేశ్వరరావు గారు బిల్లుకు మద్దతునిస్తూ చాలా స్పష్టంగా లోక్సభ వేదికగా మాట్లాడినటువంటి వీడియో ఇవాళ మీ ముందు చూపెడతా ఉన్నాం. నేను మీడియాను కూడా కోరుతా ఉన్నా, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ అమిత్ షా గారు నిన్న మాట్లాడినటువంటి అబద్ధం ఖచ్చితంగా చేరాలి. ఈ వీడియోని దయచేసి నేను మీడియా కూడా పంపిస్తా, దయచేసి మీ ఛానళ్ళలో మీరు అందరూ వేయాలి. సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా విస్తృతంగా మేము కూడా ప్రచారం చేస్తాం. అంటే ఒక హోంమంత్రి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కూడా ఏ రకంగా పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడతాడో నిన్నటి ఆయన వ్యాఖ్యలు దీనికి సంబంధించి నిదర్శనం. सरनतंगर असेंबली हल्के में बंसीलाल पेट डिवीजन बंडी मैसम्मा नगर में 27 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए 310 डबल बेडरूम मकानात को वजीर टी श्रीनिवास यादव और इमारत व शौरा के वजीर प्रशांत रेड्डी ने अवाम के हवाले किया। इस मौके पर वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि डबल बेडरूम मकानात से मुताल्लिक मुकामी अवाम में शक व शुबहात थे, इनके तमाम शक व शुबहात दूर हो गए हैं। इन्होंने कहा कि इस बस्ती में अरसे से रहने वालों को पहले तरजीह दी जाएगी। इन्होंने कहा कि दरमियानी अफराद के झांसे में ना आए। इन्होंने कॉलोनी के अवाम के लिए एक बस्ती दवाखाना, एक आंगनवाड़ी मरकज कायम करने का ऐलान भी किया। इस मौके पर कलेक्टर और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद रहे। మొన్ననే మీటింగ్ కలెక్టర్ గారితో జరిగినప్పుడు ఈ ఇళ్లల్లో ఒక బస్తీ దవాఖానా కూడా ఇస్తున్నాం అన్న, దీంట్లో ఒక అంగన్వాడీ కూడా ఇస్తున్నాం. మీరు హాస్పిటల్కు కూడా బయటికి పోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఈ హాస్పిటల్ కూడా బస్తీలోనే వస్తుంది. రోజు నిత్యం హాస్పిటల్ మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
డాక్టర్లు కానీ అదేవిధంగా అక్కడ పనిచేసేటువంటి సిబ్బంది కానివ్వండి మనకు అందుబాటులో ఉంటుంది. రెండోది చాలా ఆలోచన చేసి ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఇల్లు కట్టుకోవడమే కాకుండా 11 లిఫ్టులు, అంటే ఎవరు నాకు కింద వచ్చింది పైన వచ్చింది మధ్యలో వచ్చింది అని ఇబ్బంది పడకుండా 11 లిఫ్టులు ఉన్నాయి. ఎంత పైకి పోతే 5వ ఫ్లోర్కు పోయిన వాళ్ళకంతా హైదరాబాద్ కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఎవ్వరు టెన్షన్ పడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. రెండోది ఇక్కడ లాటరీ, ఆ డబ్బేది వెంకటదాస్ దీంట్లో లాటరీ తీస్తారు. ఈ లాటరీలో ఏ నంబర్ తీస్తే వాళ్ళకి ఆ నంబర్ ఇల్లు వస్తుంది. ఎవరికి కొట్లాట పంచాది లేకుండా ఎవరు లాటరీ తీసినప్పుడు ఎవరి పేరు వస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి సౌకర్యం ఇక్కడ కల్పించినాం. రెండోది ఈ బండమైసమ్మ నగర్ ఎండకు ఎండి వానకు తడిసి గడిచిన 60-70 సంవత్సరాల నుంచి మీ తాతలు మీ నాయనమ్మలు అమ్మమ్మలు అదేవిధంగా మీ తండ్రులు మీ అమ్మలు మీరు ఎండకెండిన వానకు తడిసింది. बंसीलाल पेट में निजाम के दौर की सीढ़ियों वाली बौली का वजीर टी श्रीनिवास यादव और इमारत शौरा के वजीर प्रशांत रेड्डी ने मुशाहिदा किया। इस मौके पर वजीर टी श्रीनिवास यादव ने इस बौली के बारे में इसकी मकबूलियत से वजीर प्रशांत को वाकिफ करवाया। टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वजीर बलदी नज़्म नस्क KTR के ताउन से इस बौली की अजमत को बहाल किया जा रहा है। इन्होंने निज़ाम दौर हुकूमत के इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की तारीफ की। प्रशांत रेड्डी ने तारीखी विरसे की अजमत को बहाल करने की KTR के फैसले पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि KCR की खुशनुदी हासिल करने के लिए वज़ीरा बीजेपी के खिलाफ निचली सतह के बयानात दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि अमित शाह को नकल मुकाम परिंदा कहना क्या दुरुस्त है। लक्ष्मण ने कहा कि कश्मीर पर TRS का मौक़िफ़ क्या है, इसका खुलासा होना चाहिए क्योंकि फौजियों की तौहीन की गई है। इन्होंने कहा है कि हरीश राव को झूठ बोलने पर अवार्ड दिया जा सकता है। TRS मजलिस के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रही है। इन्होंने KTR को निशाना बनाते हुए कहा है कि वो सिर्फ ट्विटर पर वक्त गुजारी करते हैं। इन्होंने कहा है कि TRS एक बुझता हुआ चिराग है, इसलिए ज़्यादा भड़क रहा है। TRS के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि अमित शाह ने KTR के एक सवाल का जवाब नहीं दिया, सिर्फ झूठ बोलकर चले गए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि कल का बीजेपी का जलसा किसी कॉमेडी शो से कम नहीं था। बी संजय ने बेहतरीन कॉमेडियन की तरह बात की और अमित शाह ने बेहतरीन विलन की तरह खिताब किया और किशन रेड्डी कंफ्यूज रेड्डी बनकर रह गए। जीवन रेड्डी ने कहा कि अमित शाह ने अपने खिताब में 18 बार वजीर आला का नाम लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि KCR से अमित शाह खौफजदा हैं। इन्होंने कहा कि कर्ज के बारे में अमित शाह को बोलने का हक नहीं। 8 साल में मोदी ने 1 लाख करोड़ का कर्ज लेकर भी कुछ अच्छी स्कीमें नहीं लाई। तेलंगाना हुकूमत ने कर्ज लेकर प्रोजेक्ट्स तामीर किए हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ वज़ीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी ने बालापुर चौराहे पर धरना दिया। इस मौके पर रुकन पार्लिमान जितेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर सबीता इंदर रेड्डी ने कहा कि ख़वातीन के साथ जो हुकूमत टक्कर लेगी इसका जवाल यकीनी है। गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इन्होंने कहा कि अमित शाह के जलसे में एक भी खातून दिखाई नहीं दी। सबीता इंदर रेड्डी ने खाली सिलेंडर के साथ एहतजाज किया। इस धरने में जलपल्ली की नायब सदर नशीन फरहाना नाज के हमरा अवाम की कसीर तादाद मौजूद रही। इन्होंने कहा कि अवाम बीजेपी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कीमतों में कमी करे, वरना अवाम सड़कों पर निकलकर एहतजाज करेगी। क्योंकि गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल, डीजल हर चीज़ पर दाम बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से हम मैडम के साथ मिलते हुए आज एहतजाज करते हैं कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर जितने सब चीज़ें हों उन सब का रेट गिराया जाए इंशाल्लाह ताला। इसी तरीके से आज ये धरना यहाँ बालापुर एक्स रोड पर दिया जाएगा। हम मैडम से नुमाइंदगी करते हुए आज मैडम के साथ यहाँ पर हम
हमारे वार्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी के साथ हम बालापुर में मैडम के साथ ये धरने को कंटिन्यू करेंगे। बीजेपी सरकार को गिराना चाहिए क्योंकि उन लोग आवाम को बहुत ज़्यादा परेशान करके रख चुके हैं। बीजेपी सरकार आरामगढ़ में मुनक्किदा एक तकरीब में वीडियोग्राफर्स के दरमियान हुए झगड़े में एक वीडियोग्राफर शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ता और इतवार के दरमियान शब खातून वीडियोग्राफर शकीला और वीडियोग्राफर इमरान के दरमियान एक मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ, जिस पर शकीला ने अपने भाई के जरिए चंद अफराद को तलब कर लिया। इन लोगों ने इमरान की ज़बरदस्त पिटाई करके इसे शदीद जख्मी किया, जिस पर वीडियोग्राफर्स ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में वीडियोग्राफर्स ने बताया कि वो शकीला के साथ खातून होने की वजह से हमदर्दी से पेश आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अपना रवैया नहीं बदला। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। बीजेपी और TRS के दरमियान सियासी व मौशी जंग, कर्ज लेने पर पाबंदी, TRS हुकूमत को मुश्किलात का सामना। इंतखाबात की जल्दी है तो बीजेपी पार्लियामेंट तहलील करे, रियासत में इंतखाबात वक्त पर होंगे, झूठों का बादशाह अमित शाह, KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह का बयान, बाज़ सियासी जमातों के मुंह पर तमाचा, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करने के ऐलान पर पाबंदी अहद, 20 संजय का रद्द-ए-अमल। और सनतनगर असेंबली हल्के में 310 डबल बेडरूम मकानात अवाम में तकसीम, मुकामी अवाम को पहली तरजीह, दरमियानी अफराद के झांसे में ना आए, वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।